بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی سلطان عمان کی دعوت پر ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ مسقط پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان کی اتحادی حکومت میں شامل رہنماؤں نے مدت پوری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے جاپان میں ہندوستانی برادری کے افراد سے ملاقات کی ہے۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ نے کہا ہے کہ یمن کی تقسیم کی بیرونی سازش کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی، اور روسی وزارت دفاع نے مشرقی یوکرین میں کیف کے ہتھیاروں کا ایک بڑا گودام تباہ کرنے کی خبر دی ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب پیش خدمت ہے خبروں کی تفصیل۔ صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی سلطان عمان کی دعوت پر ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ مسقط پہنچ گئے ہیں۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی کے دورہ عمان میں مسقط پہنچنے پر اس ملک کے سلطان ہیثم بن طارق آل سعید نے سرکاری طور پر پرتپاک خیر مقدم کیا۔ استقبالیہ تقریب کے بعد پہلے دونوں ملکوں کے اعلیٰ سطحی وفود کے درمیان مذاکرات شروع ہوئے، جس کے بعد دونوں ملکوں کے سربراہوں کے درمیان ملاقات اور گفتگو ہوئی۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق صدر ایران کا یہ دورہ عمان کے سلطان ہیثم بن طارق آل سعید کی سرکاری دعوت پر انجام پا رہا ہے۔ اس دورے کا مقصد دونوں ممالک کے مابین سیاسی و اقتصادی شعبوں سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید فروغ دینا ہے۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی کا یہ پہلا دورہ مسقط ہے جو ان کے اقتدار میں آنے کے 9 مہینے کے بعد انجام پایا ہے۔ ایران اور عمان کے تعلقات گزشتہ چند اشروں کے دوران خلیج فارس میں پیدا ہونے والی کشیدگیوں اور ایرانوفوبیا کے ذریعے اختلاف پیدا کرنے کی امریکی کوششوں کے باوجود ہمیشہ ایک دوسرے کے احترام پر مبنی رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحری فوج کے شمالی بیڑے کے کمانڈر نے کہا ہے کہ 3 خرداد مطابق 24 مئی کی منایا جاتا ہے۔ 24 مئی سن 1982 کو ہی ایران کا خرم شہر عراق کی باسی فوج کے 578 دن کے قبضے کے بعد آزاد ہوا تھا۔ خرم شہر کو آزاد کرانے کے لیے آپریشن بیت المقدس انجام دیا گیا تھا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے شمالی بیڑے کے کمانڈر حمید رضا سعادت نے خرم شہر کی آزادی کی سالگرہ کی مناسبت سے منعقدہ ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 3 خرداد دشمن کے قبضے سے سرزمین وطن کی آزادی کے لیے سپاہ پاسداران اور رضاکار فوج کے ساتھ بحریہ کے جوانوں کی استقامت و پائیداری اور فتح و کامیابی کا جلوہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بحریہ کے جوانوں کی استقامت نے باسی دشمن کو جو ایک ہفتے میں تہران پر قبضے کا خواب دیکھ رہا تھا 34 دن میں دھول چٹا دی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے کمانڈر نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ 3 خرداد سے مجاہدین کے ایثار و قربانی اور شہداء کی استقامت و دلیری کی یاد تازہ ہوتی ہے، کہا کہ مجاہدین وطن کے ہاتھوں خرم شہر کی آزادی قدرت الہی کا جلوہ تھی۔ پاکستان کی اتحادی حکومت میں شامل رہنماؤں نے مدت پوری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ اتوار کی رات اتحادی حکومت میں شامل جماعتوں کے رہنماؤں کی میٹنگ میں کیا گیا۔ اس میٹنگ میں اتحادی حکومت میں شامل جماعتوں کے رہنماؤں نے ملک کی موجودہ سیاسی اور معاشی مشکلات سے نمٹنے کی راہوں پر مشاورت کی۔ میٹنگ میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے لانگ مارچ کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اس اہم میٹنگ میں پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے علاوہ دیگر اہم رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ میٹنگ کے بعد بتایا گیا کہ رہنماؤں نے اتحادی حکومت کی مدت پوری کرنے اور مشکلات و مسائل سے مل کر نمٹنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے جاپان میں ہندوستانی برادری کے افراد سے ملاقات کی ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے دورے جاپان کے دوران
हिंदुस्तानी बिरादरी के अफराद से खिताब किया। नरेंद्र मोदी पीर की सुबह टोक्यो पहुंचे हैं। हिंदुस्तानी नजाद लोगों ने वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप में से कई साथी कई बरस से यहाँ आबाद हैं। जापान की ज़बान, लिबास, सकाफ़त और खाना पीना एक तरह से आपकी ज़िंदगी का भी हिस्सा बन गया है। ये हम लोगों की खासियत है कि हम काम की सरजमीन से तन मन से जुड़ जाते हैं, खप जाते हैं, लेकिन मादर वतन की जड़ों से जो ताल्लुक़ है उससे कभी भी दूरी नहीं बनने देते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान ने मेड इन इंडिया वैक्सीन अपने करोड़ों शहरियों और दुनिया के 100 से ज़्यादा ममालिक को भेजी है। अपनी हेल्थ सर्विसेज को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हिंदुस्तान बेमिसाल सरमायाकारी कर रहा है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि माहौलियात चैलेंज के बारे में हम बहुत मोहतात हैं। हिंदुस्तान बेहतर तरीके से आलमी चैलेंजों का सामना कर रहा है। ये खबरें आपकी खिदमत में रेडियो तेहरान से पेश की जा रही हैं। यमन की आला सियासी कौंसिल के सरबराह ने कहा है कि यमन की तकसीम की बैरूनी साजिश कभी भी कामयाब नहीं होगी। फार्स खबर रसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यमन की आला सियासी कौंसिल के सरबराह मेहदी अल मुश्तात ने यमनी इत्तेहाद की सालगिरह की मुनासबत से एक बयान में कहा है कि मुत्तहदा यमन की सालगिरह का जश्न इस बात के मुतरादिफ है कि यमन की तकसीम के सारे बैरूनी मंसूबे और साजिशें शिकस्त से दो चार होंगी। उन्होंने कहा कि अवाम ही यमनी इत्तेहाद का बाइस हैं और वो कभी भी तस्लीम नहीं होंगे। मेहदी अल मुश्तात ने कहा कि दुश्मन के सारे अंदाजे गलत साबित हुए हैं और अमेरिका की हिमायत से दुश्मन ममालिक यमन को मुसलसल जारहियत का निशाना बना रहे हैं, इसलिए जंग के खात्मे का अभी कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि यमनी अवाम को जंग और जंग बंदी में कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा है, इसलिए कि जारह ममालिक अपनी जारहियत से बाज नहीं आ रहे हैं। वाज़ेह है कि यमन में 2 अप्रैल को जंग बंदी का ऐलान किया गया था, जिस पर सऊदी इत्तेहाद ने कभी भी अमल नहीं किया और जंग बंदी की खिलाफ वर्जी जारी रखी है। सहूनी फौजियों ने अपने दुश्मनाना इक़दाम का सिलसिला जारी रखते हुए ग़र्ब उर्दून के मुख्तलिफ इलाक़ों पर हमले किए हैं। वफ़ा खबर रसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ग़र्ब उर्दून पर सहूनी फ़ौजियों की यलगार के बाद फ़िलिस्तीनी शहरियों और सहूनी फ़ौजियों के दरमियान झड़पें शुरू हो गईं और सहूनियों ने मुतादिद फ़िलिस्तीनियों को गिरफ़्तार कर लिया। कुछ दिनों पहले भी फ़िलिस्तीनी ज़राए ने बताया था कि रवां ईसवी साल से अब तक 1200 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों को ग़र्ब उर्दून से गिरफ़्तार किया जा चुका है। मज़कूरा ज़राए ने ज़ोर देकर कहा है कि गिरफ़्तार होने वाले 350 अफराद वो हैं जिन पर सहूनी हुकूमत ने मकबूजा फ़िलिस्तीन में इस्तकामती और शहादत पसंदाना कार्रवाइयाँ अंजाम देने का इल्ज़ाम लगाया है। गज़ा के अवाम ने सहूनी हुकूमत की जानिब से फ़िलिस्तीनी शहदा के जनाजे अग़वा किए जाने के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और इन फ़िलिस्तीनी शहदा के जनाज़ों को उनके लवाहिकीन के हवाले किए जाने का मुतालबा किया। फ़िलिस्तीनी कैदियों के महकमे ने एक रिपोर्ट में ऐलान किया है कि गासिब सहूनी हुकूमत शहीद किए जाने वाले 9 फ़िलिस्तीनियों के जनाजे उनके अहल खाना के सुपुर्द करने से गुरेज कर रही है। इरना की रिपोर्ट के मुताबिक गज़ा के अवाम ने एहतजाज के दौरान फ़िलिस्तीनी शहदा की तस्वीर उठाकर गासिब सहूनी हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे लगाए और फ़िलिस्तीनी शहदा के जनाजे उनके घरानों के हवाले किए जाने का मुतालबा किया। गज़ा के अवाम ने आलमी बिरादरी से गासिब सहूनी हुकूमत पर दबाव डालने का भी मुतालबा किया। वाज़ेह है कि सिर्फ गुज़श्ता हफ्ते के दौरान सहूनी फ़ौजियों की फायरिंग में 3 फ़िलिस्तीनी शहीद और 10 दीगर ज़ख्मी हुए हैं। ये ऐसी हालत में है कि सहूनी हुकूमत की जेलों में बंद फ़िलिस्तीनियों की तादाद 4500 से ज़्यादा है, जिनमें 34 औरतें और 180 बच्चे शामिल हैं। रूसी वज़ारत दिफ़ा ने मशरक़ी यूक्रेन में कीव के हथियारों का एक बड़ा गोदाम
तबाह करने की खबर दी है। रूस की वजारत दिफा के तर्जुमान ने ऐलान किया है कि रूसी फ़ज़ाइया ने गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान दोनबास के इलाके में यूक्रेनी फ़ौज के जंगी साजो सामान का एक बड़ा गोदाम, 26 फ़ौजी अड्डे और दीगर साजो सामान, 3 कंट्रोल रूमों को भी तबाह कर दिया। यूक्रेन में रूसी फौज का ऑपरेशन शुरू होने के बाद से रूसी फौज अब तक यूक्रेन के 174 जंगी तैयारे, 125 हेलीकॉप्टर, 977 ड्रोन, 317 तैयारा शिकन मिसाइल, 3198 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां, 408 रॉकेट लॉन्चर, 1622 तोपें और मार्टर और 3077 स्पेशल फौजी गाड़ियां तबाह कर चुकी है। यूक्रेन जंग को तकरीबन 3 महीने हो रहे हैं और दुनिया के 25 ममालिक कीव को मुख्तलिफ किस्म के जंगी साजो सामान और हथियार दे रहे हैं। रूस ने खबरदार किया है कि अमेरिका और यूरोप यूक्रेन को जो जंगी साजो सामान फराहम कर रहे हैं, यूक्रेन जंग में वो शिद्दत का बाइस हैं और उसके गैर मुतवक्के नताइज सामने आएंगे। शुमाली अमरीकी रियासत कैरोलिना में खुश्क दूध की कमी ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार बच्चों के अस्पतालों में दाखिल होने का बाइस बनी है। हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी कैरोलिना के अस्पताल के तर्जुमान ने कहा है कि अस्पताल में दाखिल होने वाले ये बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इन बच्चों को माहिरीन खुराक की टीम की निगरानी में रखा गया है ताकि उन्हें उनके लिए लाजमी कैलोरी की ज़रूरत के मुताबिक खुश्क दूध या कोई दूसरी खुराक फराहम की जाए। ऐसी हालत में जब अमेरिका को माली मसाइल बिलखुसूस खुश्क दूध की कमी का सामना है, बाइडेन हुकूमत की जानिब से यूक्रेन की भारी भरकम माली मदद वाशिंगटन में मौजूए बहस बनी हुई है। मंजर आम पर आने वाले आदाद व शुमार के मुताबिक अमेरिका में गुज़श्ता हफ्ते 43% खुश्क दूध की किल्लत रिकॉर्ड की गई। अमेरिकी रियासत कैरोलिना और जनूबी न्यूयॉर्क में होने वाले फायरिंग के 2 वाक़यात में कम से कम 4 अफराद हलाक हो गए हैं। इरना की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में फायरिंग की वारदात में सालाना कई हज़ार अफराद लुक़्मे अजल या ज़ख्मी हो जाते हैं। अमेरिका की आबादी दुनिया के 5% के बराबर है, ताहम इस मुल्क में मुसल्लह हमलों के ज़रिए इज्तिमाई कत्ल का इर्तिकाब करने वालों का तनासब दुनिया में 31% है। अमेरिकी पुलिस का कहना है कि इतवार के रोज़ न्यूयॉर्क शहर की मेट्रो में एक शख्स फायरिंग से हलाक हो गया। और व्हील चेयर बास्केटबॉल के मर्दों के एशियन मुकाबलों में ईरान ने जनूबी कोरिया को शिकस्त दे दी है। व्हील चेयर बास्केटबॉल के मर्दों के एशियन मुकाबलों में ईरान का दूसरा मुकाबला जनूबी कोरिया से हुआ, जिसे ईरान की टीम ने 50-56 के नतीजे से अपने नाम कर लिया। ईरान का तीसरा मुकाबला जापान से होगा। अलबत्ता पहले मैच में ईरान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हुआ था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था।